नमस्कार सर, मैं आपसे आज जानना चाहती हूँ कि ये जैसे डिप्टी सीएम की अपॉइंटमेंट्स है, काफ़ी स्टेट्स में भी की गई है, यहाँ हमारे हिमाचल में भी की गई है। तो इनके अपॉइंटमेंट्स का क्या कहते हैं, लीगली आपका क्या कहना है, हमारा लॉ क्या कहता है इसके, और इसके बारे में आजकल आप जैसे देख ही रहे हैं कि मीडिया में ये काफ़ी चर्चा में है। तो आप इसके बारे में हमें बताएं, एज पर लाइक लॉ क्या है, इसके बारे में कोर्ट क्या कहती है। दोस्तों, जैसा कि आपने हाल ही में देखा है, एक न्यूज़ में मीडिया पे जो है काफ़ी एक बात उछली हुई है, वो है रिलेटेड टू डिप्टी सीएम पोस्ट इन हिमाचल प्रदेश। और इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है विभिन्न माध्यमों से और विभिन्न मीडिया से। तो क्या है ये, मैं आपको जो है आज इसमें एक कानूनी पहलू के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इस बारे में ये नहीं है कि ये पहली बार इस तरह की पोस्ट कोई यहाँ पे बनी हो। इससे पहले भी जो है काफ़ी सारी जगह पे डिप्टी सीएम वगैरह बने हैं। तो इस बारे में जगह जगह पे इसे चैलेंज भी किया गया। तो आखिर कानून ने इसके बारे में क्या कहा है, मैं वो अब आपके सामने जजमेंट लाने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है केस लॉ आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, तो काफ़ी काम आने वाला है। तो इससे पहले कि मैं आपको ले चलूँ उन जजमेंटों की तरफ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के रुचिकर जो है केस लॉ लाता रहूँ, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। और आप अपना फीडबैक भी देते रहे। जैसे जैसे मुझे फीडबैक मिलता है, किसी भी केस लॉ के बारे में कोई रेफरेंस मिलता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके ऊपर वीडियो लाऊँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए काम आए। तो धन्यवाद। तो चलिए मैं अब आपको सीधे ले चलता हूँ और इस बारे में जो भी केस लॉ है अभी तक जो मेरी नज़र में सर्च करके आया है क्या है। तो जो सबसे पहला जो इसमें केस लॉ है, जैसे आपको पता होगा कि डिप्टी पीएम बने थे चौधरी देवीलाल जी, तो उसको भी चैलेंज किया गया था, ये ऑनरेबल पेक्स कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया था। तो उसमें क्या केस लॉ है, ये मैं आपको ये जजमेंट आपको बताता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या कॉन्टेंशन थी। टू contentions were raised by the petitioner in this writ petition challenging the appointment of respondent number 1, Shri Devi Lal, as Deputy Prime Minister of India, that the oath administered to him as Deputy Prime Minister was not the oath in accordance with the prescription of the Constitution, and he was still functioning as the Chief Minister of Haryana when the oath of office of his new assignment was administered to him. Pursuant to notice, two affidavits have been filed, one by the respondent number 1 and other on behalf of the Union of India. In the affidavit of the respondent number 1, certain precedents have been relied upon, and the practice which has been followed ever since the Constitution came into force has been referred to. Learned Attorney General, appearing on behalf of the Union of India, has stated that the form prescribed in the third schedule pursuant to the requirement of Article 75 of the Constitution is only for Minister of the Union, and there is no separate form even for the Prime Minister. Since the Prime Minister is also a member of the Council of Ministers, he takes the same oath as other ministers are required to take. He maintains that, yet in view of the fact that the Constitution describes him as the Prime Minister while being sworn into office, he describes himself as Prime Minister, and his practice is in vogue ever since 1950. The oath register is by the incumbent, signed as Prime Minister, and all other ministers sign as ministers. He further indicates that describing Shri Devilal as Deputy Prime Minister is descriptive only, and for all purposes he is minister, and there is no constitutional sanction for the post of Deputy Prime Minister as such. Relying on bench decision of this court in the case of Viljiram Sutaria versus Nathalal Premji Banwadia, learned Attorney General further contends that the prescribed oath should be divided into two parts, one which is descriptive and the other which contains the substantial part. And according to him, as long as the substantial part is properly followed, a mere mistake or error of the descriptive part would not vitiate the oath. This court, in the reported decision, said, in this case, as we have already noted, the essential requirement of Article 173 read with Form 7A was that the person taking the oath or making the affirmation would bear true faith and allegiance to the
Constitution and uphold the sovereignty and integrity of India. The words which precede this portion are merely descriptive of the portion and of his nomination as a candidate. In view of the clear statement made by the learned Attorney General that respondent one is just minister like other members of the Council of Ministers, though he has been described as Deputy Prime Minister, but the description of him as Deputy Prime Minister does not confer on him any powers of the Prime Minister along with his other submissions. We think the first contention raised by the petitioner has no force so far as the second contention is concerned. The petitioner himself does not press it. We accordingly reject the writ petition for the reasons indicated above, no cause. तो ये कौन सी है ये जजमेंट? एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है और ये कब आई है तो चलिए मैं भी आपको बताता हूँ। ये जो है 1990 की है और ये 1990 वॉल्यूम 1 SCC 438 में रिपोर्टेड है। ये जजमेंट है बाय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रंगनाथ मिश्रा एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस MM पुंची और जजमेंट का टाइटल है KM शर्मा वर्सेस देवीलाल एंड अदर्स। तो ये 1990 की जजमेंट है। इसके बाद बहुत जगह पे जो है डिप्टी CM बने हैं वो चैलेंज हुई है। तो वो कौन सी जजमेंट से, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसके बाद जो है नेक्स्ट केस जो मेरी नॉलेज में है वो 1993 में ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट में आया है, जिसको डिसाइड किया है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस शिवराज पाटिल और केस का टाइटल है P वेंकटेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, रिट पिटीशन नंबर 11403 ऑफ 1993 और डिसाइड हुआ था 31 मई 1993 में। और इसमें जो चैलेंज था, the petitioner in this writ petition has sought for a declaration that appointment of the third respondent as a deputy chief minister of Karnataka is ultra vires of the constitution, and he has further sought for a declaration to respondent number 2 and 4 to remove the third respondent from the office of the deputy chief minister of Karnataka. The petitioner part in person contended that under the Constitution of India nowhere there is a provision made for appointment of deputy chief Minister of State. Such an appointment results in heavy burden to the public exchequer, and respondent numbers 2 and 4 have acted without authority of law in appointing the third respondent as a deputy chief minister. फिर इस केस में भी ऑनरेबल पेक्स कोर्ट की उसी जजमेंट का जो है रेफर किया गया है KM शर्मा वर्सेस श्री देवीलाल एंड अदर्स, और उसी के बेसिस पे पैरा 5 में जो है इन व्यू ऑफ what is stated above, I do not find any merit in this writ petition to entertain it. Hence, the writ petition is rejected at the stage of preliminary hearing itself. फिर इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट जो है 1995 की है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट की है और ये जो है बाय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस SS दानी एंड बाय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस AD माने की जजमेंट है और जजमेंट का टाइटल है देवीदास वेंकटराव पवार वर्सेस गोपीनाथ मुंडे और ये 28 जुलाई 95 की है। और इसमें भी मोर और लेस यही चैलेंज है जिसमें कि ये कंटेंशन रेज की गई है कि ही वाज स्वॉर्न इन एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑन 14 मार्च 1995 और अल्टीमेटली इसी डिसीजन के बेसिस पे इस रिट पिटीशन का भी फेट वही हुआ और वो डिसमिस हो गई। फिर उसके बाद जो है एक जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, लखनऊ बेंच की है और डिवीजन बेंच की है बाय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस MA खान एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जगदीश भला। ये निर्देश कुमार दीक्षित वर्सेज एंड अदर वर्सेज रेणु चौधरी। हालांकि ये कोई डिप्टी CM की पोस्ट से रिलेटेड नहीं है, पर लेकिन एक ऐसा ही कोई फैक्ट्स है जिसके बेसिस पे इसको भी देवीलाल की जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसी के बेसिस पे इसको भी डिसाइड किया गया और इसमें एट लेंथ जो है बहुत सारा डिस्कस किया गया है लॉ वगैरह। फिर 2018 में एक जो डिसीजन है ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट का जो है बाय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित शेखर S अय्यर वर्सेस चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। इसमें भी जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को चैलेंज किया गया था। फिर वो यही जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की KM शर्मा वर्सेस श्री देवीलाल के बेसिस पे इस केस को भी डिसमिस किया गया था और इसमें जो है ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ा स्ट्रिक्ट व्यू लिया है और इसमें जो है जो डिसमिस भी किया गया है और इसमें 10,000 का फाइन भी लगा है जो है In the circumstances of the case, despite having expressed serious reservation on the nature petition, we are yet keeping the quantum of cost on the lower side in view of the submissions made by the petitioner in the last. Accordingly, this petition is dismissed with cost quantified at ₹10,000 to be deposited by the petitioner within 30 days from today with the Deputy Commissioner of Dakshina Kannada district. If this amount of cost is not deposited by the petitioner within 30 days from today,
द डिप्टी कमिश्नर कंसर्न शैल इंश्योर इट्स रिकवरी फ्रॉम द पिटिशन इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और ये केस भी डिसमिस हो गया था। फिर लास्टली जो केस जो मेरी नॉलेज में आया है वो 2019 का है, और ये है इन द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़, CWPIL नंबर 221 ऑफ 2019 है, 16 नवंबर 2019 का केस है। और ये जो है केस का टाइटल है जगमोहन सिंह भट्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये भी ऑनरेबल डिवीजन बेंच का है, कंप्राइजिंग ऑफ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रविशंकर झा चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजीव शर्मा। और इस केस में भी जो हरियाणा में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका चैलेंज किया गया था, उनकी अपॉइंटमेंट को। इसमें बहुत सारा केस हो एट लेंथ डिटेल इसमें जो डिस्कस किया गया है, और अल्टीमेटली ऑन द बेसिस ऑफ KM शर्मा एंड श्री देवीलाल की जजमेंट के बेसिस पे इस पिटीशन को भी जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसमिस किया है। तो ये जो है इतने सारे केस लॉ है जो मैंने आपकी नॉलेज में लाए हैं, ये काफ़ी नोट करने के लिए है, क्योंकि इस तरह के सर्कमस्टांसेस और भी आते रहेंगे, और जो इसमें रेशो ले डाउन की गई है हो सकता है किसी और फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में भी आप इसे जो है एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो आप इसका लिंक जो है सेव कर कीजिए, और मैं भी इसको जो है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और रिट लॉ से रिलेटेड जो मैंने एक बनाई हुई है प्लेलिस्ट मैं उसमें डालूंगा, ताकि फ्यूचर में आप लोगों को कभी भी सर्च करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। और इनके बाद मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपकी नॉलेज में कोई और जजमेंट हो जो इसके कॉन्ट्रेरी हो या इसी तरह की हो, तो काइंडली उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, वो रेफर करें, ताकि मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ, या वो और भी लोगों के जो है बेनिफिट के लिए काम आ सके। तो काइंडली आप उसे जरूर कमेंट में लिखें। और फिर एक बारी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो है अपने परिवार और अपने मित्रों से भी आप जरूर सब्सक्राइब कराएं, ताकि मेरा सब्सक्राइबर बेस भी बढ़े और आप लोगों का सहयोग इसी तरह से मुझे मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।